Good evening, everyone, and welcome to a special session for SBL March 2025 एग्जाम। अब एग्जाम से पहले जो आपकी करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एसबीएल को लेके उस पर आज बात करेंगे। देर आर 2-3 थिंग्स विच यू नीड टू नोट डाउन स्पेसिफिकली इन एसबीएल इज द MEP। You all know MEP? What is MEP? Your exam, my exam performance report। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनकी MEP बहुत कुछ बताती है कि उन्होंने कहाँ गड़बड़ करी। सो आई वॉज लुकिंग एट द रिपोर्ट्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स रिसेंटली एंड वन कॉमन फीडबैक इज कमिंग फ्रॉम द एग्जामिनर। यू विल बी शॉक्ड टू नो वन SBL में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर पेपर। Paper completion is a very big problem. That means complete 100 mark of paper the students are not able to solve. What do you think? What is the problem? कैसे solve कर सकते हैं इस problem को और ये problem है क्या? Why majority students are not able to solve the paper? What problem do you think? Because I have seen that in your mocks also. आप लोगों का भी पेपर पूरा अटेम्प्टेड नहीं था। क्या रीजन लग रहा है नवीन? With the reading, understanding of the question and the language we have to put in technical words जो short में कर सके but हम लंबा लिखे बड़ा बड़ा लिखे। बड़ा बड़ा लिखते हैं। सो अभी मैं जो आपको फीडबैक्स देने वाली हूँ दीज फीडबैक्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द मॉक्स प्लस हु हैव नॉट गिवन द मॉक्स। you need to start noting down. The first thing which is highlighted in MEP is time management issue. Time management issue means हमें उन्हीं 3 घंटों में बहुत सारे काम करने हैं। You have to read the question, you have to understand the question, then you have to create an outline of your answer, then you have to present the answer. ये 4 to 5 activities जो हैं students are finding it very difficult to do all of them together. That is a very major problem. Approximately 70% students are struggling here. This is the root cause of why somebody would not clear an SBL exam. I'll tell you, time management की वजह से impact किस किस चीज पे आता है। Number one, the student is in rush. The student is in rush. In rush of what? In rush of reading the question or requirement. That is the first rush which he is doing. Now, how do we get to know कि student बहुत rush में है? Actually, it is identifiable that for how long he read the question. For P level, sometimes it becomes difficult, but skill level में it is very clear that the student is investing some 30-32 seconds in reading an MCQ. Now, how I can relate that this is happening in SBL also? When I am seeing your mock test papers, the first thing I can see is evidently your answer is not addressing the requirement. Question कुछ पूछ रहा है और आप कुछ बोल रहे हैं। इसका क्लियर मतलब यही है कि आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं। अब आपने वो क्यों नहीं पढ़ा? आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू नॉट हैव दैट कैलिबर कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा। द पॉइंट इज यू वर इन अ रश। आप बहुत जल्दबाजी में थे क्योंकि टाइमर ऊपर चलता हुआ दिख रहा था और आपने बड़ी जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट रीड करी। आपने आंसर का स्ट्रक्चर क्रिएट किए बिना लिखना चालू कर दिया। दैट मीन्स द सेकेंड प्रॉब्लम विच कम्स अप इज students start writing the answer without creating an outline of what they want to write. अब इसका side effect सुनो. Let's suppose there is a question in the exam and you are talking about maybe the revenue of the company and maybe the advertising which it did. आप पहले एडवर्टाइजिंग की बात करते हो, उससे बोलते हो कि रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ, द कंपनी हैज डन वंडरफुली बिकॉज was in recession, still the company could hold this much market share. Then you start talking about the costs attached with the marketing campaign. The third thing, again, you start talking about revenue increase.
दिस डिस्कनेक्ट इन द पॉइंट्स मीन्स आपने आंसर की आउटलाइन बनाई ही नहीं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। Let me first introduce who am I. I will write my name first, then I'll write my qualifications, then I'll write my experience. But then suddenly when I again start talking about my qualifications, that means मैं लिखते लिखते भूल गई कि qualification ऊपर डिस्कस हो गई थी। Getting my point? आप ऊपर एक चीज डिस्कस करते हो, उसी का रेफरेंस वापस देने लगते हो और वही पॉइंट वापस से रिपीट करते हो। दैट मीन्स while writing you forgot that you have covered this point. क्या किसी के साथ ये हो रहा है? प्लीज टिक मार्क इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग दिस, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूं दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू ऑल टू मैनेज योर टाइम एंड पेपर इन एसबीएल। किसी के साथ हो रहा है कि इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है? बिकॉज आई एम सीइंग दिस इन योर मॉक टेस्ट पेपर्स दैट एट मेनी प्लेसेस यू आर रिपीटिंग द इंफॉर्मेशन। जब आप आउटलाइन बनाते हो तो आप आउटलाइन कैसे बनाओगे, देखते चलो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट माय नेम इज निधि। आई विल टॉक अबाउट नेम। 2-3 सेंटेंस यहां लिखूंगी, मैं एंटर करके आगे लिखती हूँ। राइट अबाउट माय क्वालिफिकेशन, this is an outline. Then I'll talk about the advantages of being Nidhi. Then I'll talk about the challenges of being Nidhi. तो मेरे को अब उसके बाद में यहां क्या करना है, अब मुझे यहां पे एक्सप्लेनेशन चालू करना है। एंड आई विल रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू नॉट माई क्वालिफिकेशन विल बी मिक्स्ड, नो एडवांटेजेस विल बी मिक्स्ड, आई विल रेस्ट्रिक्ट टू माई नेम, दैट्स इट। माई नेम इज ब्ला 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 ब्ला। Now I reach to the qualification. I am a chartered accountant and an MBA and a master's. मैं यहाँ पे अपने advantages, disadvantages नहीं cover करूंगी because the heading clearly has been put by me. Then next, advantages. I qualified a degree which taught me blah blah blah. I will talk about the benefits of my studies only. Benefits of me struggling a lot in my life. लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। मैं सिर्फ फायदों की बात करूंगी। यहां पे मैं बात करूंगी आई एम अ वेरी फसी टीचर। आई डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स वेरी इजीली। आई एम रिजिड बाय माइंड, बट आई एम अ वेरी गुड पर्सन। मैं यहां नहीं लिखूंगी क्योंकि ऊपर दिख रहा है कि मुझे चैलेंजेस की बात करनी है। गुड पर्सन यहां नहीं बैठेगा, यहां पे सिर्फ मेरे चैलेंजेस ही आएंगे। दिस इज एन आउटलाइन यू ऑलवेज नीड टू क्रिएट, ऑलवेज डू दैट। मैं आपको एक जो आपका मॉक था उसकी आंसर शीट दिखाती हूं। दैट आंसर शीट विल गाइड यू टू सम एक्सटेंट कि क्वेश्चन भी बनाता है ये आउटलाइन। सी, कैन यू सी दिस? दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटलाइन। द मोमेंट यू गेट टू नो कि मुझे पेस्टल लगाना है, एटलीस्ट पेस्टल के सारे आइटम्स के ये ऊपर हेडलाइंस डाल दो, then you can always come up and start explaining. How many of you have been doing this practice? See, can you see this? See, how many of you all do this? ईमानदारी से बताओ, जितने ज्यादा एडमिशंस करोगे ना कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही है, उतना ही इंप्रूवमेंट होगा। और पूरा बोलो कि हाँ मैं हेडिंग डाल के या मैं आउटलाइन बना के नहीं लिखता। प्लीज स्पीक अप। एनीबडी या एवरीबडी इज मेकिंग एन आउटलाइन एंड देन एक्सप्लेनिंग? बोलो गाइस, बोलो। तो तुम लोगों के आंसर शीट खोल दूं फिर? चैट बॉक्स में नहीं चलेगा, स्पीक अप। प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक अप। Yes, ma'am, I do not create headings. I don't create outlines and then write the answer. Please speak this up. Astha, I'll start with you. Yes, ma'am. What? Like, ma'am, in some questions which are quite evident that we have to make the headers for these questions, I do make. But then some questions like today I was doing a question which was related to principal-agent relationship. So there I just simply wrote in para format. So Okay. there I did not made an outline. ठीक है, अब इस अपने सेंटेंस को याद रखना, आई डेंट मेक एनी आउटलाइन ऑफ इट। नाउ आई विल सजेस्ट इसको कैसे लिख सकते हो। जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप था, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? एक एग्जांपल दे दो मुझे आस्था, एनीथिंग। Means it was an NGO where it was related to the board of trustees and the management.
Like the board of trustee was the principal and the management was the agent, and the principal had assigned some task to the agent on behalf of the on behalf of it. ओके तो मैं अब इसकी आउटलाइन कैसे बनाती? आई वुड हैव यूज द वर्ड स्टूवर्डशिप, देन आई वुड हैव टॉक्ड एजेंसी थ्योरी. याद है? कुछ याद आया एजेंसी थ्योरी के नाम से? Yes. Then I would have written about accountability. Who is accountable? The agent is accountable to whom? To the principal. तो मैं ऐसे उसको बनाती. हाँ, मैं इसको हेडिंग नहीं बनाती, लेकिन मैं इसके अराउंड इसका पैराग्राफ लिखती और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती, so that I know what I'm writing about. और इससे एक फायदा और होता है, when I can see that I have to write an answer worth 6 marks, that means I need to discuss 3 separate topics and matters for the examiner. Now, what 3 matters will I discuss? I'll talk about the agency theory, I'll talk about the accountability. Next, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, केस में ढूंढो. मुझे यहां से भी ये इशारा मिलेगा that I need to write about something else also. क्योंकि 6 marks 2 points पर नहीं मिलेंगे, very rare chances. ठीक है, आपको एग्जामिनर को कुक करके देना है so that he can easily demark marks to your points. But clumsy, he will not be able to understand कहाँ advantages हैं, कहाँ disadvantages हैं, कहाँ पे agency theory है और कहाँ पे stakeholder theory है. He will get confused. So that is one of the problems which I saw in many papers and which is coming in comments from the examiner as well. Always create an outline. This will definitely benefit you. ठीक है, सब लोग लिखो अपने हाथ से. इस बात को तुम्हें दिन में 4 बार बोलना है. मैंने आउटलाइन क्रिएट नहीं करी, इसकी वजह से आंसर का स्ट्रक्चर मैसअप हो गया. आप जब तक ये चीज बोलोगे नहीं ना 3-4 बार, वो यहां रजिस्टर नहीं होगा. प्लीज स्पीक इट अप. अपनी कमी को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है. रियलाइजेशन नहीं होगा तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? तो हमें डार्क मोड में नहीं रहना है. ठीक है, मैंने आउटलाइन क्रिएट नहीं करी जिसकी वजह से मेरा आंसर मैसअप हुआ. नाउ यू नो द रीजन. तो दिमाग अपने आप बोलेगा क्रिएट आउटलाइन, क्रिएट आउटलाइन. तो आप आउटलाइन बना के फिर आंसर लिखोगे. एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? वेयर यू ऑल आर लैगिंग? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Naveen and all those students who have given the mocks, please open your mocks and check कि क्या आप आउटलाइन लिखते तो शायद सिचुएशन ठीक होती, प्रेजेंटेशन बेटर होता. चेक करो इसको. ठीक है, नेक्स्ट पे आती हूं अब. ट्राइंग टू अटेम्प्ट द कंप्लीट पेपर. आई एम सॉरी टू से दिस because this video is going to go into public. Many students will come up saying कि मैम आप क्या बोल रहे हो कि पूरा पेपर अटेम्प्ट मत करो. मैं ये बोल रही हूं जो अटेम्प्ट करो वो बेस्ट करो. सो मार्क माई वर्ड्स, जो अटेम्प्ट करो वो परफेक्टली अटेम्प्ट करो. नाउ आई एम सीइंग योर आंसर्स, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. आप एक पार्ट को पूरा डिस्कस करे बगैर ही नेक्स्ट पे जंप कर गए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज करी. अभी मैंने जो आपको मॉक दिखाया उसमें सिंबल्स, रिचुअल्स, इसके बारे में बात थी. उनकी हेडिंग डाली है एक बच्चे ने, लास्ट के 2 पॉइंटर्स पे एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चालू कर दिया. क्या फायदा हुआ? आप जितना नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखोगे उतना आप सिंबल्स पे, रिचुअल्स पे भी लिख देते, वहां पे नंबर मिल जाते जो यहां मिलेंगे. मैंने ये कई जगह देखा है, शायद ओइंद्री भी ये चीज करती थी कि एक क्वेश्चन, बिकॉज टाइम बाउंड जब भी हुआ है, आई हैव सीन दैट कि बच्चा उसका एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के छोड़ देता है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करना चालू कर देता है. बेटा बात बराबर ही है. आपने ऊपर जो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आप वहां नंबर गंवा जाओगे. नीचे नंबर पाने के चक्कर में यू आर लूजिंग मार्क्स इन दी फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर अटेम्प्टिंग. प्लीज ये कॉम्पिटिशन बंद करो कि मुझे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, चाहे वो रबिश अटेम्प्टेड हो. मार्क माई वर्ड्स, 85 मार्क्स का पेपर ब्यूटिफुली अटेम्प्टेड वर्सेस 100 मार्क्स का पेपर अनसिस्टमेटिकली अटेम्प्टेड. 85 मार्क्स वाला हैज मोर प्रोबेबिलिटी टू मेक यू पास. आई कैन गारंटी दैट. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. 10 नंबर का पेपर छूट गया, इट्स ओके.
90 marks done beautifully, systematically, to the point. That is much better than a 100 marker attempted paper, which is attempted in a rush. Not properly explained, requirements not properly met, calculations, presentations not done properly. 100 मार्क्स में से पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन 90 मार्क्स में से सब कुछ कर रखा है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रिक्वायरमेंट मीट करी है, रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया है, पीपीटी की स्लाइड ठीक बनाई है, नीचे नोट्स ठीक दिए हैं, 10 नंबर का पेपर छूट गया, दैट्स ओके, यू हैव फुल पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग. तो ये रश मत करो कि एक चीज को बीच में छोड़ दिया एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है. दिस इज एज गुड एज नॉट अटेम्प्टिंग. इज माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोलो. Yes, ma'am. ठीक है. Now, because the student is in rush, he reads the requirement in a rush. Because of reading the requirement in a rush, mostly the answers do not meet the requirement. That is a very critical feedback which I can also see, which the examiner is also saying. Requirements not met properly. मैं इसका अलग हेड क्यों बना रही हूं? Requirements may not be met properly because you were reading the question in a rush. You really didn't understand question चाह क्या रहा है. That is one possibility. There is another possibility कि आपको पता ही नहीं है कि आंसर कैसे करें. There is a mixed bag of students जो ऐसा कर रहे हैं. ये तो केस वो है, हमने जो आंखों से देखा वही समझा, उसी का आंसर लिखा. लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सही समझ रहे हैं पर आंसर लिखते टाइम गलत लिख रहे हैं. यानी दो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हो गए. वन, जिनको रिक्वायरमेंट ही गलत समझ में आ गई तो उन्होंने उसके बेसिस पे आंसर लिख दिया क्योंकि जल्दबाजी में थे. क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है ये सोचे बगैर ही जितना समझ में आया उसका आंसर फ्रेम कर दिया, यानी रिक्वायरमेंट ही ठीक से नहीं समझी. लेकिन दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट ठीक से समझ में आती है, लेकिन जब वो लिखने लगते हैं तो वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते. आप कौन सी कैटेगरी में हो वो देख लेना. लेकिन इसका इलाज बताती हूं. इसका इलाज क्या है? ACCA has been monitoring the time invested in reading the question. एक स्टूडेंट कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है टू रीड द क्वेश्चन. दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इट एंड सरप्राइजिंगली इट इज वेरी लेस. I have been teaching since years. I have been reading legal documents, deeds, reports since years. Still, I take time to read the requirement, understand the requirement. Even in the classes आप देखोगे कि मैं स्क्रीन के आसपास ना देखती हूँ क्योंकि क्वेश्चन को रीड करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में, पढ़ाते टाइम भी टेक्स टाइम. तुम लोग इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? हाँ, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन डू दैट. मेरा ये क्वेश्चन इसलिए आया, आप सेंटर पे बैठे हो, ऊपर घड़ी घूम रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस देयर. कैसे हो जाता है ये? रश नहीं करना है. प्लीज इन्वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन रीडिंग द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. यू ऑल प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मी कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी. What was this part saying? As a special projects assistant to the new CEO of Dolly Warden, you have been asked to produce a confidential report to the CEO. क्या किसी ने वर्ड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ा? पढ़ा? अब तुम सब बोलोगे हाँ मैम पढ़ा. तो मैंने किसी की रिपोर्ट में प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल वर्ड क्यों नहीं देखा? You all missed that. You all missed that. Not even a single student wrote private and confidential. शायद ओइंद्री ने लिखा था. But apart from one student, nobody highlighted this. चाहे वो लेटर हो, चाहे वो रिपोर्ट हो, if it is confidential, even if it is a mail, you have to clearly mention private and confidential. प्राइवेट मत लिखो तो कॉन्फिडेंशियल तो जरूर लिखो.
वो आप सब मिस कर गए। अब रिक्वायरमेंट पे आते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में डिस्कस क्या करना है? हाउ द कल्चर ऑफ डॉली वर्डन might have affected its historical growth and development. You should refer to an appropriate theoretical model. Can you highlight question की requirement क्या है? Please unmute and tell me. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? हिंदी में बताओ। तुम्हें हिंदी में समझ में आएगा तो तुम अपने आप आंसर बना पाओगे उसका। तो लास्ट का जो एक्सपीरियंस था, जो चल रहा है कल्चरल वेब बेसिकली, तो उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज थी उनको ग्रो करने की पास्ट में और डेवलप करने की, वो क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। डॉली वर्डन के कल्चर के बारे में डिस्कशन करो कि क्यों इनके कल्चर की वजह से हिस्ट्री में यानी बीते हुए टाइम में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूं। लेट मी ओपन अप द मॉक्स वन बाय वन। नवीन, नवीन प्लीज ओपन योर मॉक। यस मैम। ठीक है, क्या कहीं पे भी हेडिंग्स हैं आपके इस आंसर में? कल्चर ऑफ डॉली वर्डन में आपने जब नीचे लिखा, जबकि आप लिख रहे थे बार बार कि वो कुछ बिलीव्स, अप्रोच, वैल्यूज यूज करते हैं, माइंडसेट है डॉली का, उसके बावजूद हेडिंग सब जगह से गायब थी। क्या रिवॉर्ड सिस्टम की बात हुई इसमें? बिकॉज इनका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत बड़ी प्रॉब्लम था इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उस पर बात नहीं हुई। ठीक है नवीन, गॉट इट? यस मैम। इसका आंसर बहुत ब्यूटीफुली लिखा निकिता ने। निकिता, आर यू देयर? निकिता इज Yes, देयर ma'am. क्या? Yes, ma'am. It's maybe Nikhil. ओके, सो निकिता, यू स्टार्टेड ब्यूटीफुली। आपने हेडिंग्स दी रिचुअल्स की, रूटीन्स की, पावर स्ट्रक्चर की। रिचुअल्स में देखो आपने क्या लिखा। रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट the accidentals super profits are being donated to the Dolly Varden Trust. आपने ये लिखा। Yes, ma'am. क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि कैसे इनके कल्चर ने पास्ट में इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में रुकावट डाली। आपके इस रिचुअल Yes, के ma'am. आंसर से कहीं भी पता चला कि रुकावट कैसे डाली? No, ma'am. I saw. गॉट इट? Yes, ma'am. अपना जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, अपने हर पैराग्राफ के बाद में बोलो। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि यार रुकावट कैसे डाली, तो क्या मेरे आंसर ने ये डाला कि ये कैसे हिंडर हुई ग्रोथ और डेवलपमेंट? नहीं पता लगा। रूटीन्स पे आते हैं। रूटीन्स, these are the day-to-day activities which happen in an organization, perfectly defined. Financial support also given by the trust to the employees for their children who wish to do undergraduate and postgraduate for social work or medicine. मतलब इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। Also, the employees are encouraged to give 10 days paid holidays for voluntary work. Perfect. Yes, ma'am. But how did it hinder the growth and development? Again, not answered. I have to explain. मुझको समझ में आ गया मैम। मैंने बाद में जब रीड करा था, आपने आंसर भी सेंड करा था, उसमें मैंने देखा प्रोडक्टिविटी लूज हो जाएगी फॉर लॉन्गर टर्म के लिए, ऐसा। ठीक है, हमें Yes, ये ma'am. बताना था कि इनके प्रीवियस कल्चर की वजह से ग्रोथ कैसे रुकी। तो ऐसे रुकी जी, इनके जो रिचुअल्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ये जो एक्सीडेंटल सुपर प्रॉफिट्स हो जाते हैं ये डोनेट कर देते हैं, इससे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए पैसा ही खत्म हो जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, मैं असल में तो केस भूल गई हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने सुपर प्रॉफिट्स कमाए, आपके आंसर में लिखा हुआ है कि सुपर प्रॉफिट्स डोनेट कर दिए गए चैरिटेबल ट्रस्ट को, ये इनका प्रीवियस कल्चर रहा है। तो इस प्रीवियस कल्चर ने ग्रोथ कैसे रोकी? दैट पॉइंट गॉट मिस्ड। नाउ द स्टूडेंट सेज कि मैंने लिखा तो ठीक था, बिल्कुल, लेकिन आपने कंक्लूड ठीक नहीं किया। मैम अगर इसमें ये लिखे कि जो सुपर प्रॉफिट्स थे दे कैन री इन्वेस्ट इन दी वो, तो दैट कुड बी दी आई गेस। हाँ, तो अब आप इसको क्या लिखना है? सजेशन। अगेन रॉन्ग आंसर। अगेन यू आर सजेस्टिंग कि भाई उसको री इन्वेस्ट मत करो, उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, डोनेट मत करो। आपसे किसी ने सजेशन मांगा ही नहीं।
उसने क्या मांगा, इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई। अब ड्राफ्ट करो आंसर, क्या किया, इन्होंने सुपर प्रॉफिट्स को डोनेट कर दिया। इफ दिस मनी वुड हैव बीन used in the expansion of the business, then the company would have grown. ठीक है, ये मत बोलो कंपनी शुड डू दिस, दिस इज एन एडवाइस। ये बोलो कि इन्होंने गलती ये करी, अगर ये गलती नहीं करी होती तो आज कंपनी एक्विजिशन करके एक्सपैंड कर चुकी होती। गॉट इट, समझ गए? यस मैम। ठीक है, ओके। सौंदर्या खोलो अपना पेपर। Yes, ma'am. The organizational structure adopted at Dolly Warden seemed to be an informal structure. Perfect. This can be determined on account of its majority of the key personnel positions occupied by the family members itself, thus facilitating familiarity and accountability on an informal note. बिल्कुल सही point. But is it meeting the requirement of the question? Ma'am, not exactly because I haven't told how familiarity would impact in terms of development. अब समझ में आ गया ना, मैंने इसीलिए आपसे पूछा सो दैट आई कैन हियर योर आंसर, दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इशू विद योर आंसर। मैंने इसमें बहुत नंबर काट लिए, लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है नंबर क्यों काट लिए? Yes, क्योंकि ma'am. किसी भी चीज से ये पता नहीं चल रहा कि ये रुकावट कैसे बना। ये प्रॉब्लम है वो तुम सब बच्चों ने समझाया, लेकिन इसकी वजह से क्या रुका वो नहीं बताया तुमने। ठीक है, सो प्रॉब्लम ma'am. स्टेटमेंट यू गेव। वरुण, यस मैम। वरुण आप यहाँ पे फायदे बताने लग गए। Initially, Dolly Warden follow her parents' path and able to establish good practice leadership skills from continued experiences from her business. However, the next generation seem to lack the leadership quality and effective decision making. Since there is no now outsider involved in senior most position to guide or assist in strategic development and decision, ये जो next generation है, ये कौन सी generation है? The accountability reduces if the family members already know they are going to be elected for this position in a company in any case. जब इन चीजों का अपने पास प्रूफ नहीं हो तो हम नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास लीडरशिप स्किल ही नहीं थी। दिस इज वेरी हार्श। ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमेशा फैमिली मेंबर्स ही रहे, वही इलेक्टेड रहे, तो नए आइडियाज ही कहां से आएंगे बिजनेस में? Why do we keep different marketing manager, different HR manager, different strategy manager? हम अलग अलग क्यों रखते हैं, एक ही बंदा क्यों नहीं करता? वो इसलिए रखे जाते हैं so that fresh ideas can come up, brainstorming कर सके अलग अलग कल्चर के लोग। यहाँ पे एक ही फैमिली कर रही है, उनका तजुर्बा भी एक ही है, so ideas can get restricted. We cannot say कि तुम्हारी लीडरशिप पुअर होगी। मिस्टर रतन टाटा पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन ईओ मार्केटिंग मैनेजर नहीं था, थे, तो आइडियाज उन्होंने भी लिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेसेस जब वन मैन शो चलते हैं तो वो खराब ही होते हैं। नो, ही नीड्स अ टीम, दैट इज इट। एंड व्हाई इज अ टीम नीडेड? फॉर आइडियाज, फॉर इनोवेटिव आइडियाज। जहां पे मेरी कमी होगी वहां पे मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर संभालेगा। ठीक है, सो यहां पे आपने सारी चीजें जो लिखी वो बहुत, क्या बोलूं, सोची हुई थी कि भाई लीडरशिप स्किल पुअर है, कहीं पे सिग्नल नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो कोट करो कि पुअर लीडरशिप स्किल कैसी आई। अच्छा, फिर यहां पे बात हो रही थी कंपनी के कल्चर की, तो हम डॉली वर्डन की लीडरशिप स्किल्स या उसके ज्ञान की बात नहीं कर सकते, कल्चर की बात करेंगे, बिजनेस का कल्चर। कल्चर ये है कि फैमिली सब कुछ संभालेगी। कल्चर ये नहीं है कि लीडरशिप पुअर होगी। हमें इंडिविजुअल की बात नहीं करनी, बिजनेस के कल्चर की करनी है। ठीक है, आपने आगे भी देखो पर्सन पे ज्यादा बात करी। Lily followed the path of her mother and involved in strongly social responsibilities. The continues in next generation, and this results employees being paid at higher than average salaries. Even the profit margin is quite low, and management is not considered the profit sustainability in future. तो प्रॉब्लम क्या हुई इससे ग्रोथ में?
ना तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ना ये समझ में आ रहा है कि इशू कहाँ है। लो प्रॉफिट मार्जिन क्यों हुआ, उस पे बात करो। ठीक है, मैं अपनी माँ की राह पे चली थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही थी, इसका इंपैक्ट बोलो। इंपैक्ट नहीं बोला आपने। इंपैक्ट ये हो सकता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डोनेशन ज्यादा कर दिए, जो पैसा एक्सपेंशन में यूज हो सकता था वो डोनेट कर दिया गया। दिस इज एन आंसर। ठीक है, Yes, ma'am. समझ गए सब लोग ये बात? ऑल स्टूडेंट्स हु इवन डिडंट गिव द मार्क्स, बात समझ में आई? Yes, क्वेश्चन की ma'am. रिक्वायरमेंट समझो हमेशा। एक और तुम्हें दिखाती हूँ केस, उससे भी तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन ना समझने से सारा पेपर गड़बड़ हो सकता है। सी दिस पार्ट। Now the report has to evaluate the extent to which the ethical code of Dolly Warden might restrict opportunities for future growth. बड़ा ही अजीब सा सेंटेंस है, वाकई टाइम लगेगा समझने में, तो टाइम लगाओ, जल्दबाजी मत करो। क्या पूछ रहा है ये? डॉली वर्डन का जो एथिकल कोड है वो किस हद तक उसकी फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को रोक सकता है? एम आई राइट? Yes, ma'am. डॉली वर्डन का जो एथिकल कोड है वो किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को रोक सकता है? इसमें पता है सबने क्या लिखना चालू किया? एथिकल थ्रेट। कोई लिख रहा है ऑब्जेक्टिविटी, कोई लिख रहा है फेमिलियरिटी थ्रेट। वहां का एथिकल कोड कैसे फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर रहा है, मैं इसका आंसर दिखाती हूं आपको। आपको अपने आंसर से कंपेयर करने में थोड़ी आसानी रहेगी इसकी। ये मॉडरेट और सफिशिएंट वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये इनका एम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मतलब मेरे वाली जैसी प्रॉब्लम है कि ठीक है यार, हमें कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं करनी है, हम मॉडरेट वेल्थ से भी खुश हैं, इससे ग्रोथ रुकती है। ठीक है, आपको सफिशिएंट वेल्थ का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। आप जहां जहां पे इन्वेस्ट करके पैसा और कमा सकते थे, कंपनी को ग्रो कर सकते थे, आप वो ग्रो करने की बजाय सोचोगे मैं तो इतने में खुश हूं। इनके ये जो एथिक्स है ना, दे आर क्रिएटिंग अ हर्डल इन देयर सक्सेस स्टोरी। आगे देखो, फेयर एंड जस्ट कॉम्पनसेशन। फेयर एंड जस्ट कॉम्पनसेशन की बदौलत इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा पैसे बांटे जा रहे हैं। था कुछ ऐसा केस? ये लोग एक्सेसिव रिवॉर्ड्स दे रहे हैं जस्ट बिकॉज इनके एथिक्स बोलते हैं कि भाई फेयर एंड जस्ट कॉम्पनसेशन होना चाहिए। अब मैं तुम सबको भी ये चीज बोलती हूँ, तुम सब बच्चे ऑडिट भी मुझसे पढ़ के आए हो, तुम सब बच्चों ने ऑडिट में कई जगह जवाब ये लिखे एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन होगा। यहां पे भी लिखते हो तुम लोग, एपीएम में भी लिखा बहुत बच्चों ने, अगर सैलरी कम होगी या सैलरी मार्केट से ऊपर नहीं देंगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होगा। अब इसका इंपैक्ट सोचो बिजनेस की तरफ से। अगर आप एक बैंड ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते हो ना, आपको सबकी सैलरी बढ़ानी होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो बढ़ा दूंगा बाकियों की नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ऑल रेंजेस ऑफ सैलरी, ऑल पोजीशंस, ऑल लैडर्स विल हैव एन इंक्रीमेंट। नंबर वन, क्या उस इंक्रीमेंट को हम बजट में प्रोवाइड कर सकते हैं? कंपनीज को ये देखना होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई आप मार्केट से ऊपर इनको सैलरी देने लग जाओ। यहां पे यही गलती हो रही है। आपके जो एक्सेसिव रिवॉर्ड पैकेजेस हैं, जो इंडस्ट्री से अबव हैं, उसकी वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे लिमिट होंगी? आपका पैसा, आपका बजट का बहुत बड़ा पोर्शन वहां जाने लग जाएगा। ये आपको, मेरे को, हम जब तक एम्प्लॉयज होते हैं ना तब तक ये चीज लगती है, लेकिन जिस कंपनी के पास 50,000 एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके लिए 1,000 रुपए भी बढ़ाना इज अ बिग डील। सो द कंपनी हैज टू क्रिएट अ बजट फॉर दिस। ठीक है, अब आते हैं, देखो नेक्स्ट इन्होंने बोला भाई विदाउट अनजस्टिफाइड डिले, जो सेटलिंग पेबल्स हैं
इनका उसूल ये है कि जल्द से जल्द इनको पेमेंट कर दो, इनके एथिक्स हैं ये। बताओ इसमें ग्रोथ कैसे रुक रही है? हम वर्किंग आज तक कैपिटल देखते आए हैं मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पुअर होता है। हमने आज तक देखा है कि भाई पेबल्स आपका सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेकिन तुम्हारे एथिक्स तो ये बोलते हैं इनको जल्द से जल्द पे करो। अरे भाई, तुम्हारी वर्किंग कैपिटल को तुम ओवरड्राफ्ट से उठाओगे क्या फिर? जबकि पेबल ये कह रहा है 60 डेज में देना जी, सब 60 डेज में देते हैं। नहीं, हम तो 10 दिन में ही देंगे। मेरे एथिक्स ये बोलते हैं। ये एथिक्स नहीं, ये बेवकूफी है। So these were the ethics of the company which were creating a hurdle in the growth opportunities. कोई बच्चा क्वेश्चन समझा ही नहीं और सबने कोई ऑब्जेक्टिविटी थ्रेट कर दी, किसी ने कोई थ्रेट कर दी। रिक्वायरमेंट वाज नॉट क्लियर। और एसबीएल के पेपर में खेल यही होता है। तुम अगर क्लासेस देखोगे, क्लासेस आर वेरी सिंपल। तुम्हें क्लासेस के टाइम पे ये लगेगा कि अरे यार ये तो मैं वैसे ही समझ जाता, बिल्कुल समझ जाते तुम, लेकिन उसी को क्वेश्चन में लगाना ये तुम्हें समझना है। तो जो आसानी से समझ में आया है ना, वो तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करने की प्रैक्टिस पे अब जोर लगाओ। ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट प्रॉपरली मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब ये तो मुझे बोल्ड कर देना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज द प्रॉब्लम। Every attempt you pick up the examiner's report, every time this is being highlighted, that the students are not writing to fulfill the requirements of the question. And that's the truth. I can see that. इसलिए ज्यादा फोकस रखो रिक्वायरमेंट को समझ के, आउटलाइन बना के, फिर आंसर लिखने पे। ठीक है? बस देखा ना ताओ और धड़ 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 उतार डाला। नॉट अ गुड अप्रोच। मत भागो कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तुम 90 का ही कर लो। ठीक है? समझ गए? हम रेस नहीं करेंगे। अब स्टेप्स अहेड। Now in the remaining days, how you need to prepare. However, you have one more mock to go. लेकिन मॉक तो बाद में होगा, वो तो आपकी टेस्टिंग होगी। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, कल वाला जो आपका मॉक होगा उसको मैं शाम को खोलूंगी। मेरे कहने पे अभी एक क्वेश्चन रात को प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन पुराने वाली एग्जाम किट का उठाना, उसमें ये गेज करना है आपको कि क्या आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझे और आपने जो आंसर बनाया और एग्जामिनर ने जो हाईलाइट्स दिए क्या वो मैच हो रही हैं। One question tonight, one question tomorrow morning, so that tomorrow in the evening when you are giving your mock, at least 2 questions have been through your hands. और इसको आपको करना है टाइप। अब आपको डेली क्वेश्चंस टाइप करके प्रैक्टिस करने हैं। उठाओ, देखो कौन सा वाला क्वेश्चन है जिसकी रिक्वायरमेंट बड़ी अजीब सी लग रही है, उसी क्वेश्चन को उठा लो। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाओ और उसको टाइप करो विद इन टाइम लिमिट। क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम ये आती है, जब ऊपर घड़ी चल रही होती है उसी टाइम पे क्वेश्चन को रीड करना, आउटलाइन बनाना, मैं इसमें क्या लिखूंगा, ये सब चीजें ना कोलेट करना मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स इट्स वेरी एसेंशियल टू डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आप सब में से बहुत लोगों का तो पेपर ही पूरा अटेम्प्टेड नहीं है। एटलीस्ट 30 40 मार्क्स के पेपर्स छूट रखे हैं। इसका मतलब स्पीड इज अ प्रॉब्लम। स्पीड पे काम करो। पेपर 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करने को बोल रही हूँ, 30 मार्क्स का नहीं। ठीक है? सो वॉट एवर डेज आर लेफ्ट फॉर यू, इन सब में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डेली टाइप करो। उसकी रिक्वायरमेंट देखो कि यार ये थोड़ी सी लंबी रिक्वायरमेंट लग रही है, लेट मी पिक दिस क्वेश्चन। फॉर 25 और 30 मार्कर क्वेश्चन 50 मिनट्स इज द एलोकेटेड टाइम। 50 मिनट्स में यू शुड कंप्लीट इट। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, स्टॉप देयर एंड देयर। देखो, चेक करो कितने मार्क्स का पेपर छूट गया। फिर नेक्स्ट डे वापस से यही प्रैक्टिस करो। अब आपके थोड़े से जो टाइप्ड पेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। पहले वाले दिन जहां पे आपने 2 पेजेस टाइप किए होंगे, अब वो 2.5 पेजेस हो जाएंगे। थर्ड डे इट वुड बी 3 पेजेस। सो द ब्रेन, फिंगर्स, एवरीथिंग विल बी इन सिंक। दैट वी नीड टू टीच आवरसेल्व्स। ठीक है? कंटेंट तुम्हारे दिमाग में है, जो मैंने स्टोरी बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट था वो तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया। अब बचता है उसी कॉन्सेप्ट को यहां फिट इन करना। So how many days you have? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday and Monday. You have 6 days.
दैट मीन्स अभी भी अगर खींच लिया आपने आपको, यू कैन प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, बिकॉज वीकेंड भी है, सैटरडे संडे भी है, उस दिन 2 नहीं करने हैं, उस दिन ज्यादा करने हैं। 2 भी करोगे तो 12 क्वेश्चंस तो यही हो गए 6 दिन में, ठीक है। 15 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, यू हैव टू टाइप, स्टॉप वॉच ऑन करके एंड देन प्रैक्टिस देम। कंपेयर इट कि आपने क्या रिक्वायरमेंट समझी और एग्जामिनर ने जो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं या हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आपके आंसर में है कि नहीं है। समझ गए? एम आई क्लियर हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद योर प्रिपरेशन? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, सो मेरी तरफ से ऑल एडवाइसेस आर डन। टुमारो आई विल ओपन योर मॉक एट 5 o'clock और 6 o'clock इन द इवनिंग। आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर टाइम कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन प्लीज करो, क्योंकि तुम रिक्वायरमेंट में गड़बड़ करे जा रहे हो। जो लिखते हो वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वो मांग नहीं रहा। आई ऑलवेज से दिस, द क्लाइंट इज ऑर्डरिंग पाव भाजी एंड यू आर गिविंग हिम छोला भटूरा। ये लॉजिक नहीं चलेगा कि मैम छोला भटूरा तो अच्छा था ना, अरे पर उसको चाहिए तो पाव भाजी ना भाई, तो छोला भटूरा विल नॉट वर्क। Whatever he is asking, please serve that only. ठीक है, तो पाव भाजी और छोले भटूरे को ध्यान रखना। अबे समझे नहीं समझे? Yes, ma'am. ठीक है, गुड। हाँ, चलो, एनी अदर क्वेश्चन आई नीड टू आंसर एज ऑफ नाउ? ऑल सेट? मैम मेरे को एक डाउट था। हम्म। मैं ना क्वेश्चन को सिनेरियो से लिंक नहीं कर पाती हूँ, बहुत बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरे को समझ में नहीं आता कि लिंक करूँ क्या, कैसे, मुझे वो रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आ रही उस टाइम पे। देखो, सबसे पहली चीज तो जो केस में दिया होता है ना, उसमें सबसे पहले हाईलाइट करना चालू करो कहां पे बिजनेस इज डूइंग वेल, समथिंग विच आर द गुडीज ऑफ द बिजनेस एंड समथिंग विच आर क्रिटिकल फॉर द बिजनेस, उनको अंडरलाइन करो पहले। फिर रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे ब्रेक करके पढ़ो, उसका हिंदी करो, देन रीच बैक टू द केस अगेन और उसको यूज करते हुए आंसर करो। ट्राई दिस, क्योंकि निकिता ये तो मेन प्रॉब्लम हुई कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन को तो धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट। मैम ठीक समटाइम है, लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती कि पूछना क्या चाह रहा धीरे धीरे पढ़ो, इसका है। इलाज यही है। इसका इलाज यही है। मैं तुम्हें अभी नहीं बोल सकती कि ये अंग्रेजी की प्रॉब्लम है, अंग्रेजी ट्यूशन लगाओ वो अभी वायबल नहीं है। ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। अभी देखो, मैंने जो पढ़ा था मैंने भी ब्रेक करके ही पढ़ा था। आई डेंट रीड एक साथ। मैंने क्या पढ़ा था अभी? Evaluates the extent to which the ethical code of Dolly Varden, एथिकल कोड जो डॉली वर्डन में है वो किस एक्सटेंट तक रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसकी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को। फिर इसी सेंटेंस को वापस बोलो तो वो और दिमाग पकड़ेगा कि अच्छा, एथिकल, इनके कुछ एथिक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ है वही रुके जा रही हैं। फिर इस सेंटेंस को वापस चेक करो कि यही पूछ रहा है ना कि इनकी जो एथिक्स हैं वो इनकी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। सो डिवोट गुड 1.5 minutes टू इट। That is what I was trying to tell you with the data from ACCA side, that students are spending only 30 seconds to read a question. 30 seconds they read and immediately they start typing. 30 seconds में तो मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम बच्चे तो कैसे समझोगे? ठीक है, यस मैम। ओके। सो देर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई पर्सनली नीड टू आंसर, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग द क्लास, very very all the best, prepare well for the exam, and remaining whoever has a question, abhi apan corrected है, जाना मत। Okay, so guys, all the best for SBL, do well.